دوستو آج کی ایپیسوڈ میں یاسر کی ذہانت پر تم ضرور خوش ہوگے کہ کیسے اس نے منمیت کور کی حقیقت اس کے بھائی سے گلوائی۔ ایسے ہی مزے کی ایپیسوڈ کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ایپیسوڈ آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ شکریہ۔ چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ جرنیل سنگھ اپنی مخصوص کرسی پر بڑی شان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے اور مونچھوں کو تاؤ دینے لگے۔ کچھ دیر بعد ہماری خاطر تواضع کے لیے لوازمات پیش کیے گئے۔ 2 گھنٹے ہماری رسمی گفتگو میں گزر گئے جہاں زیب خان اصل موضوع چھیڑتے ہوئے جرنیل سنگھ سے ساتھیوں کی گرفتاری کے بارے میں بات شروع کر دی۔ جرنیل سنگھ چند لمحے سوچتے ہوئے بولے، تم لوگوں کے ساتھی اس وقت ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں اور ان کو نہایت سخت سیکیورٹی میں رکھا گیا ہے۔ اگر ہم لاکھ کوشش بھی کر لیں تو اس سچویشن میں ہم انہیں ملٹری کی قید سے آزاد نہیں کروا سکتے۔ جہاں زیب خان بولا، تو پھر کیسے آزاد کروا سکتے ہیں؟ جرنیل سنگھ بولے، ملٹری والے ایسے قیدیوں کو زیادہ دن ایک جگہ نہیں رکھتے، 2 سے 3 دن میں ایک سے دوسری جگہ منتقل کرتے رہتے ہیں۔ میں خود کرنل رہ چکا ہوں، اس لیے مجھے ملٹری کے بارے میں سب کچھ پتا ہے۔ ویسے بھی میرے کچھ خاص بندے ابھی ملٹری میں ہیں۔ کل مجھے یہ خبر ملی تھی کہ 2 آتنکوادیوں کو کلہاٹ جیل میں رکھا ہوا ہے۔ باقی مزید میں پوچھتا ہوں ایک بندے سے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے قریب بیٹھے لڑکے کو بولا، جاؤ دھنمید بھی میری ڈائری لے کر آؤ۔ جرنیل سنگھ کے منہ سے دھنمید سن کر مجھے یوں لگا جیسے انہوں نے منمید کہا ہے۔ جرنیل سنگھ اس کے بیٹے کا نام تھا۔ اس کا مطلب منمید کور بھی جرنیل سنگھ کی ہی بیٹی ہے، کیونکہ اس کی نام کی مشابہت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ دھنمید اور منمید دونوں بہن بھائی ہیں۔ حالانکہ ابھی تک منمید کور کا خیال میرے ذہن میں نہیں تھا۔ جیسے ہی انہوں نے دھنمید کہا، اسی لمحے میرے ذہن میں منمید کور کا خیال گردش کرنے لگا۔ دھنمید سنگھ نے جی اچھا کہہ کر کوٹھی کی جانب چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دھنمید سنگھ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ڈائری پکڑی ہوئی تھی۔ جرنیل سنگھ نے ڈائری پکڑ کر کھولی، ورق گردانتی کرتے ہوئے اپنے بائیں جانب بیٹھے بیٹے کو کہا، پی اے نمبر ملا کے دے۔ دھنمیت سنگھ نے ڈائری پر نمبر دیکھ کر موبائل پر نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ میرا بس نہ چل رہا تھا کہ ابھی جرنیل سنگھ سے پوچھ لوں کہ آپ کی کوئی بیٹی ہے جس کا نام منمیت کور ہے۔ حالانکہ سریش منمیت کور اور میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ امرتسر سے ہریانہ آتے ہوئے وہ میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے بھی اس بات کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے شک ہے کہ منمیت کور بلویر سنگھ کے چچا کی بیٹی ہے۔ دھنمیت سنگھ نے کال ملا کر موبائل اپنے باپ کو پکڑا دیا۔ چند لمحوں بعد دوسری جانب سے کال ریسیو ہونے پر جرنیل سنگھ اپنی مخصوص زبان میں اس سے معلومات لینے لگا۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد جرنیل سنگھ نے کال بند کی اور فون دھنمیت سنگھ کو پکڑا دیا۔ فون پکڑانے کے بعد جرنیل سنگھ بولا، پرسوں رات کو دونوں قیدیوں کو گیوسیالی جیل میں منتقل کرنا ہے اور کلہیور سے گیوسیالی جیل کا فاصلہ 200 کلومیٹر کا ہے۔ اس دوران ہم اپنے ساتھیوں کو چھڑوانے کی ممکنہ کوشش کر سکتے ہیں۔ قیدیوں کو بختر بند وین میں سخت سیکیورٹی میں کلہیور سے گیوسیالی کی طرف لے جایا جائے گا۔ راستے میں کئی جگہ ایسی صورتحال بن سکتی ہے جہاں پر اگر ہم پوری طاقت سے حملہ کر کے سیکیورٹی کو نشانہ بنانے کے بعد اپنے ساتھیوں کو چھڑوانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جہاں زیب خان بولا، حملہ کرنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے ہم تیار ہیں، مگر حملے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ جرنیل سنگھ بولا، کن کی پتھر۔ جہاں زیب خان بولا، ایک تو ہمیں پوری لوکیشن کا علم ہونا ضروری ہے کہ انہوں نے کن راستوں سے گزرنا ہے، دوسرا سخت سیکیورٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہیوی قسم کی مشین کا ہمارے پاس ہونا ضروری ہے۔ جہاں زیب خان کی بات سن کر جرنیل سنگھ مغرور انداز میں قہقہہ لگاتے ہوئے بلویر سنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اوئے بلویر، لگتا ہے تم نے انہیں میرا چنگی طرح تعارف نہیں کروایا۔ بلویر سنگھ عاجزی سے بولا، ان کو سب کچھ بتایا ہے آپ کے بارے میں۔ جہاں زیب خان بلویر سنگھ کی بات کاٹتے ہوئے بولا، سردار جی، مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، میں نے صرف اپنی رائے پیش کی ہے۔ اگر آپ کو برا لگا تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ جرنیل سنگھ قہقہہ لگاتے ہوئے بولا، ارے نہیں یار، کنج دی گل کیتی ہے تس ساڈے مہمان او ساڈے لئی محترم ہو، تیری غل دی غصہ کیوں کرنا؟ میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ تم لوگ جہاں بیٹھے ہو یہاں سے تم لوگوں کو سب کچھ دے کر روانہ کیا جائے گا۔ رہی لوکیشن کی بات تو اس بارے میں مجھے سب پتا ہے، پھر بھی اگر تم لوگوں نے اپنے طور پر تسلی کرنی ہے تو ابھی کل کا سارا دن پڑا ہے، لوکیشن دیکھ لینا، اس کے بعد پلاننگ کر لیں گے۔ جہاں زیب خان بولا، ٹھیک ہے، آپ ہمیں لوکیشن سمجھا دیں۔
अगर ऐसे समझ में आ गई तो ठीक है, वरना हम कल चक्कर लगा लेंगे। जहांजेब खान की बात सुनकर जरनैल सिंह ने नक्शा और कागज पेंसिल मंगवाकर नक्शे पर निशान लगाकर समझाने के बाद कागज पर लकीरें खींचते हुए लोकेशन के बारे में आगाह करते हुए इस जगह की निशानदेही करने लगा। मुख्तसर कुछ ही देर में ये तय पाया गया कि एक दफा मखसूस जगहों का मुशाहिदा कर लें और फिर 4 टीमों की शक्ल में चारों अतराफ से हमला करके सिक्योरिटी के हिसार को खत्म करने के बाद अपने साथियों को छुड़वाया जाए। हम टोटल 11 लोग थे। 6 तो हम लोग थे, एक सरेश, एक 4 सरदार थे, जबकि एक टीम में 4 लोगों का होना जरूरी था, एक गाड़ी ड्राइव करता और 3 लोग हमला करते। 5 लोग हमें मजीद दरकार थे, जिनमें से 3 जरनैल सिंह के बेटे शामिल हो गए और 2 कोठी में मौजूद गार्ड्स जो स्पेशल ट्रेनिंग याफ्ता थे। कुछ देर बाद जरनैल सिंह अपने तीसरे बेटे संदीप सिंह को बोला, मेहमान खाने में मेहमानों के सोने का इंतजाम करो, रात बहुत हो गई है, सुबह फिर जल्दी उठना है। संदीप सिंह अपने चौथे भाई को साथ लेकर कोठी की दाएं तरफ बनी राहदारी की तरफ चला गया। साथ में उन्होंने 3-4 मुलाजमीन को भी ले लिया। इस दौरान मैं जानबूझकर धनमैयत सिंह की तरफ टिकटिकी बांधे देखने लगा ताकि इससे डायरेक्ट बात करके इसके करीब होने का बहाना बन जाए। कुछ देर में मेरा ये अमल कारआमद साबित हुआ। जब 3-4 दफा धनमैयत सिंह ने बातों से तवज्जो हटाकर चौंक कर मेरी जानिब देखा। इसके यूं अचानक देखने पर मैं इससे नजरें हटाने की बजाय मुस्कुराकर इसे देखकर उसके बाप की तरफ देखने लग गया। पहले 3-4 दफा तो इसने मेरी इस हरकत को इत्तेफाकिया समझकर इग्नोर कर दिया, मगर 5वीं दफा वो अपनी जगह से उठकर मेरी जानिब बढ़ते हुए मेरे साथ खाली कुर्सी पर बैठते हुए फ्रैंकली अंदाज में मेरी रान पर हाथ मारते हुए बोला, और सुनाओ वीर, सब खैरियत है? मैं मुस्कुराते हुए इसकी रान पर हाथ मारते हुए बोला, सब खैरियत है वीर जी, तुम सुनाओ? धनमैयत सिंह बोला, मैं भी चंगावा। बाकी मैं कब से देख रहा था, तुम मेरी जानिब बड़े गौर से देख रहे थे। मैंने सोचा वीर के पास जाकर पूछ लूं सब खैर तो है। मुझे यूं घोर घोर कर क्यों देख रहे थे? हमारे दरमियान बातें इस अंदाज से हो रही थीं कि बाकी साथियों को हमारी बातों के बारे में मालूम नहीं हो सका सिवाय सरेश और माजो के। वो दोनों मेरे साथ बैठे हुए थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ना वीर, तुम मेरे भाई हो, मैंने तुम्हें घोर कर क्यों देखना है? मैं तो इसलिए तुम्हें देख रहा था कि मुझे यूं लग रहा था जैसे मैंने तुम्हें कहीं आते जाते देखा है। मेरी बात सुनकर धनमैयत सिंह मेरी रान से हाथ हटाकर मेरे कंधे पर बाजू रखकर बोला, अच्छा तो ये बात है, फिर याद नहीं कि कहाँ देखा था? मैंने कहा, वैसे तो मुझे यहाँ आए ज्यादा दिन नहीं हुए और जितने दिन हुए हैं उन तमाम दिनों में हम सफर में ही रहे हैं। शायद आपको चंडीगढ़ आ दिल्ली में देखा होगा। अब फिर मुझे मुगालता लग रहा है क्योंकि सरदारों की पगड़ियों से सब एक जैसे ही नजर आते हैं। मेरी बात सुनकर धनमैयत सिंह खिलखिलाकर हंस पड़ा। हंसते हुए वो मेरे कंधे पर थपकी मारते हुए बोला, वाह यार, बंदा तो शगुल है। मैं मुस्कुराते हुए बोला, शुरू से यारों की सोहबत में रहा हूं। जिस महफिल में यारों के बीच शगल मियल ना हो तो फिर इस महफिल का क्या मजा? धनमैयत सिंह बोला, वाह, अपना भी यही हाल है, सारी जिंदगी यारानाल ही गुजारी है। इसी दौरान बिलवीर सिंह ने सबको मेहमान खाने में चलने का कहा। मैं उठकर खड़ा हुआ तो धनमैयत सिंह भी मेरे साथ खड़ा होकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरे साथ मेहमान खाने की तरफ चल पड़ा। धनमैयत सिंह जितनी जल्दी मेरे साथ फ्रैंक हो गया था, मुझे इसकी हरगिज भी तवक्को नहीं थी, क्योंकि जिस तरह का इसका डैशिंग स्टाइल था, नोकदार बड़ी बड़ी मूंछें, छोटी सी दाढ़ी, सर पर पगड़ी, करता पाजामा पहने हुए देखने में वो काफी मगरूर नजर आता था, मगर इससे मिलकर बातें करके अंदाजा हो गया था कि वो तबीयत के लिहाज से काफी खुशगवार तबीयत का मालिक है। दोस्ताना अंदाज में खुशगवार मोड में चलते हुए हम कोठी के पीछे वाली साइड पर पहुंचे तो वहां भी अलग से कोठी नुमा इमारत बनी हुई थी जिसे मेहमान खाने का नाम दिया गया था। मेहमान खाने के अंदर दाखिल हुए तो ड्राइंग रूम सोफों से सजा हुआ नजर आया। यूं शक्ल में काफी कमरे नजर आ रहे थे। धनमैयत सिंह बोला, यासिर भाई, अभी सब लोग सोने के लिए अपने अपने कमरों में घुस जाएंगे। मैं तो तुम्हारे साथ इसलिए आया था कि छत पर जाकर कुछ देर गुपशप करेंगे। अगर नींद तुम्हें नहीं आ रही तो आओ छत पर चलते हैं, वहां बैठकर सुकून से एक दूसरे के सुख दुख सुनेंगे। मैंने कहा, यार, कैसी बात कर रहे हो? हुक्म करो। यारों के लिए कई रातें जागने के लिए तेरा भाई तैयार है। वैसे भी अभी मुझे नींद नहीं आई। धनमैयत सिंह बोला,
खुश कर दत्ता जुट्टा। चल आजा फिर छत पर चल कर बैठते हैं। बलवीर सिंह सब साथियों को उनके कमरे दुखाने में मसरूफ था। धर्मयत सिंह ने बलवीर सिंह को ऊपर जाने का कहकर मुझे लेकर छत पर आ गया। छत पर कुर्सियां और टेबल लगे हुए थे जिन पर जुग गिलास वगैरह रखे हुए थे। कुर्सियों और टेबलों को देखकर मैं समझ गया कि छत पर बैठने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। मौसम की तब्दीली की वजह से छत पर काफी खुशगवार मौसम था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। धर्मयत सिंह ने मुझे कुर्सी पर बैठने का कहकर करते के अंदर हाथ डालकर कुछ निकालने लगा। मुझे लगा कि धर्मयत सिंह पिस्टल निकालकर टेबल पर रखने लगा है, मगर जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में सफेद रंग की वालेती बोतल थी। मैं बोतल को देखकर हैरानगी से बोला, सरदार जी, ये काम भी करते हो? धर्मयत सिंह बोतल का ढक्कन खोलते हुए बोला, ये कैसे मुमकिन है कि सरदार हो और ना पिए? मैंने कहा, लगता है छत पर टेबल वगैरह इसीलिए लगाए हुए हैं। धर्मयत सिंह बोला, यहाँ तो रोज रात को महफिल जमती है। अब भी देखना आहिस्ता आहिस्ता सारे सरदार छत पर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। वैसे मैं बहुत कम छत पर आता हूँ और जब आता हूँ तो शराबियों की महफिल से दूर बैठकर अकेले में बोतल खत्म करके वापस कोठी चला जाता हूँ। ये कहते हुए धर्मयत सिंह ने 2 गिलास बनाकर एक मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले फिर भाई के नाम का पहला गिलास। मैं मुस्कुराते हुए बोला, धर्मयत नाराज मत होना, मैं नहीं पीता। धर्मयत सिंह बोला, पहले नहीं पीते थे मगर सरदार की यारी की खातिर पीनी पड़ेगी। मैं मुस्कुराते हुए बोला, अगर बात यारी की है तो फिर उसकी जगह जहर भी पीने को कहो तो इनकार नहीं करूंगा। ये कहते हुए मैंने गिलास उठाकर धर्मयत सिंह से शेयर करते हुए एक ही घूंट में गिलास खाली करके टेबल पर रखते हुए मुंह बिसूरते हुए कहा, सरदार जी, ये तो देसी है। धर्मयत सिंह कहा लगाते हुए बोला, तुम तो छुपे रुस्तम निकले हो, कहते हो कभी नहीं पी और पहले गिलास से ही देसी और वालेती की पहचान कर ली। मैं गिले की खराश को के निगारती हुए बोला, असल में हमारे डेरे पर मेरे कुछ यार पीते रहते हैं। उनके बीच बैठने की वजह से देसी और वालेती का इल्म हो चुका है, मगर ये भी सच है कि मैंने कभी नहीं पी। आज तुमने यारी का कहकर मुझे अलिफामोशनल करके पीने पर मजबूर किया है। इसी दौरान अमरजीत सिंह और निजवैद सिंह छत पर नमूदार हुए। वो भी आकर दूसरी टेबल पर बैठकर पीने लग गए। कुछ ही देर में 10-12 सरदार छत पर आकर पीने में मसरूफ हो गए। मैं और धर्मयत सिंह अलग टेबल पर बैठे बातें करते हुए पीने में मसरूफ थे, जबकि बाकी अलग बैठे आपस में गप्पे हानुकते हुए पी रहे थे। कुछ देर में धर्मयत सिंह की जबान लड़खड़ाने लगी। असर तो मुझे भी हो रहा था, मगर जिस मकसद के लिए धर्मयत सिंह के करीब हुआ था, इस मकसद को पूरा करने के लिए मुझे इसी मौका का इंतजार था, इसलिए मैं खुद पर काबू किए हुए था। मौका से फायदा उठाते हुए मैंने बातों का रुख मोड़ते हुए धर्मयत सिंह से इसकी फैमिली के बारे में बात करते हुए कहा, सरदार जी, आपने ये तो बताया नहीं कि आपकी मसरूफियात क्या है और आप कितने बहन भाई हैं? धर्मयत सिंह बोला, मसरूफियात बस यही हैं जो तुम देख रहे हो, और रही फैमिली मेंबरान की बात, हम 7 भाई हैं और 1 बहन है। मैं हैरत से कहते हुए बोला, और तुम्हारा कौन सा नंबर है या फिर सबसे अलग वाला नंबर है? धर्मयत सिंह बोला, सबसे छोटी मेरी बहन थी, इससे बड़ा मैं हूं। वो मैं चौंकते हुए अंदाज में बोला, क्या मतलब बहन थी? मेरी बात सुनकर धर्मयत सिंह के चेहरे पर दुख और आंखों में नमी देखकर मैं इधर उधर देखकर सबको अपने ध्यान में बैठे देखकर सामने उठकर धर्मयत सिंह के करीब आकर उसके कंधे पर बाजू रखकर बोला, क्या बात है धर्मयत वीरे? बहन का जिक्र करते हुए इतने गमगीन क्यों हो गए हो? धर्मयत सिंह अपने आंसू साफ करते हुए जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही अचानक इसकी याद आ गई है। मैंने कहा, मैं समझा नहीं, क्या इसकी शादी हो गई है या फिर वो बैरूनी मुख चली गई है? मेरी बात सुनकर धर्मयत सिंह एकदम से मेरे साथ लगते हुए गहरी सांस लेते हुए अफसुर्दा होकर बोला, हाय, जाने कहाँ चली गई है मेरी लाडली बहन? काश मुझे अपनी मनमयत के एड्रेस का इल्म होता। मेरी मनमयत ऐसी तो नहीं थी कि जाते हुए अपने भाई को अपना एड्रेस भी बताना मुनासिब नहीं समझा। वो तो अपने भाई से कुछ भी नहीं छुपाती थी। जो बात किसी से शेयर नहीं करती थी वो बात मुझसे शेयर कर लेती थी। फिर यूं अचानक ना जाने मेरी मनमयत कहाँ गायब हो गई। धर्मयत के मुंह से मनमयत कौर का नाम सुनते ही मेरा शक 100% यकीन में बदल गया कि जिस चीज का मुझे शक था वही हुआ। धर्मयत की बात सुनकर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब इसे क्या कहूं। क्या इसे बता दूं कि मैं मनमयत कौर से मिल चुका हूं?
क्या इसे हकीकत बता दूं कि जिस लड़के के साथ वो भागी थी इसने इसके साथ किया सलूक किया। सोचने में ये बातें बहुत आसान थीं मगर उन बातों को जुबान पर लाना बहुत मुश्किल काम था। ना जाने धर्मयत सिंह का क्या रिएक्शन होता। एक तो वो फुल धत था, दूसरा इसकी बहन का इज्जत का मामला था। ऐसे में वो एकदम आपे से बाहर भी हो सकता था, मेरे साथ तलखी भी कर सकता था। पीने की वजह से इसके मुंह से अपनी बहन के मुतालिक बातें निकल गई थीं। होश में होता तो शायद अपनी बहन का जिक्र इस अंदाज में न करता या फिर बहन का जिक्र ही न छेड़ता। धर्मयत सिंह के मुंह से ये सुनकर कि वो ऐसी तो नहीं थी, मेरे साथ अपनी हर बात शेयर करती थी, फिर इसने ऐसा क्यों किया। इस बात पर मुझे उम्मीद की किरण नजर आई कि शायद मैं इसे झूठ बोलकर मनमयत कौर को बेगुनाह साबित करके इसे घर वापस लाने में मनमयत कौर की कुछ मदद कर सकूं। क्योंकि इसकी बातों से और उसके रिएक्शन से मुझे इतना तो यकीन हो गया था कि मनमयत कौर और धर्मयत सिंह के बीच में दोस्ताना ताल्लुक था, जिसे अमूमन बहन भाइयों में होता है, वरना धर्मयत सिंह ने सीधा कह देना था कि वो मर गई है। धर्मयत सिंह को मजीद कुरेदते हुए मैंने कहा, धर्मयत यार, क्या हो गया है? जवान बंदे हो, यूं बच्चों की तरह रोते अच्छे लगते हो क्या? अगर मुझे तुम अपना दोस्त समझते हो तो अपना दुख मेरे साथ शेयर कर सकते हो सकता है मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। धर्मयत सिंह खुद पर कंट्रोल करते हुए कुर्सी से उठकर खड़े हुए, लड़खड़ाया और फिर खुद को संभालते हुए मेरे कंधे पर बाजू रखकर मुझे छत के कोने की तरफ ले जाने लगा। छत काफी बड़ी थी, इसलिए हम चलते हुए दूसरे साथियों से काफी फासले पर जाकर खड़े हो गए। धर्मयत सिंह छत की चार दीवारी की तरफ दीवार पर बाजू रखकर मेरी जानिब देखते हुए बोला, यासिर यार, तुम्हें अपना दोस्त न समझता तो मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात मुंह से ना निकालता जो बात किसी के सामने नहीं कर सकता था। मैं अनजान बनते हुए बोला, धर्मयत सिंह देखो यार, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या मामला है जिसकी वजह से तुम इतने परेशान हो गए हो। फिर भी अगर तुम मुझे कुछ समझते हो तो मुझसे अपनी दिल की बात कर सकते हो। इससे तुम्हारे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा और हो सकता है मेरी नाकिस राय तुम्हारे किसी काम आ जाए। धर्मयत सिंह बोला, यार कैसे बताऊं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो हम पर मुसीबत का पहाड़ गिरा है वो तुम्हें बता सकूं। देखने वालों को ये लगता है कि हम शानदार कोठी में रहते हैं, सारी दुनिया के ऐशो आराम हमें मुयस्सर है। कुछ तकलीफ परेशानी तो हमें छू कर भी नहीं गुजरती होगी, मगर इस शानदार कोठी में तमाम आराइश और आराम होने के बावजूद पिछले एक हफ्ते से सुगवार माहौल है। किसी के सामने हंस कर बात करना सिर्फ मजबूरी है, दुनियादारी का दिखावा है। मैंने कहा, बिल्कुल ऐसे ही होता है। कभी कभी रेशम के लिबास में छुपा जिस्म जख्मों से चूर होता है, मगर इसे रेशम का लिबास छुपाए हुए होता है। क्या मैं जान सकता हूं तुम्हारी बहन के साथ क्या मामला हुआ है? धर्मयत सिंह हिचकी लेकर कड़वे थूक का घूंट निगलते हुए बोला, मनमयत कौर हम 7 भाइयों की इकलौती बहन होने के साथ सबसे छोटी और घर की लाडली थी। यूं समझ लो सबकी आंख का तारा थी। यूं तो सब भाई इसके पैरों तले आंखें बिछाते थे, इसके एक इशारे पर जान देने को तैयार हो जाते थे। सब इस पर जान छिड़कते थे। इस कोठी की शान थी, हमारी जान थी। वो सबसे ज्यादा मेरे साथ अटैच थी, अपनी हर बात मेरे साथ शेयर करती थी। जब वो रुठती थी तो सिर्फ एक में ही था जो इसे मिला पाता था। मैं इसका कहना नहीं टालता था, वो मेरा कहना नहीं टालती थी। जवान होने के बावजूद उसकी हरकत बच्चों वाली थी। हर वक्त किसी न किसी को तंग करना, जब मार पड़ने का डर होता तो मुझे ढाल बनाकर मेरे पीछे छप जाना। यहाँ तक कि जब उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने की फरमाइश की तो उसकी ये फरमाइश भी मैंने ही पूरी करवाई थी, वरना तो घर में कोई भी इस बात पर राजी नहीं था कि वो अकेली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहे। शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल भी यही थी कि घर वालों से लड़ झगड़ कर मैंने इसका एडमिशन चंडीगढ़ करवा दिया था। 2 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा, मगर एक हफ्ते पहले वो छठी पर घर आई। इसके बाद वो अपनी किसी फ्रेंड के घर जाने का कहकर घर से निकली तो आज तक वापस नहीं आई। अचानक से ना जाने कहां गायब हो गई। सब घर वाले ये कहते हैं कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है, क्योंकि घर से नकदी और जेवरात भी गायब हैं, मगर मेरा दिल कहता है मेरी मनमयत कौर ऐसा नहीं कर सकती। जरूर उसके साथ कोई हादसा पेश आया है। अगर वो किसी लड़के को पसंद करती भी होती तो कम अज कम मुझे जरूर बताती। ऐसे छप छुपाकर वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। ये कहकर धर्मयत सिंह बच्चों की तरह रोने लग गया।
इसके जज्बात, इसका दुख, इसकी इमोशनल बातें सुनकर लम्हा भर में मेरी आंखें भी भर आईं। मैं अपने आंसू पूंछते हुए आगे बढ़कर धर्मयत सिंह को गिले लगाकर बोला, तुमने इसकी फ्रेंड के घर से या फिर चंडीगढ़ जाकर यूनिवर्सिटी से इसके बारे में मालूमात नहीं की? वहां इसके क्लास फेलोज फ्रेंड भी तो होंगे, क्योंकि अगर उसका किसी लड़के के साथ अफेयर होता तो लाजमी इसकी किसी फ्रेंड को इल्म होना था। धर्मयत सिंह बोला, पहले 3-4 दिन तो सब घर वाले इसके बारे में पता चलाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे थे, मगर डैडी को जब ये बात मालूम पड़ी कि मनमयत कौर घर से नकदी और जेवरात लेकर गई है तो उनको पक्का यकीन हो गया कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये बात मालूम पड़ते ही डैडी ने सबको सख्ती से मना कर दिया कि कोई भी इसको तलाश करने की कोशिश मत करे, बल्कि आज के बाद घर में कोई भी फर्द इसका नाम तक ना ले। अगर किसी को वो कहीं नजर भी आ जाए तो इसे इसी वक्त गोली मार दी जाए। डैडी का फैसला सुनाने के बाद मनमयत कौर को तलाश करने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। मैंने 1-2 दफा डैडी से छुपाकर चंडीगढ़ जाकर उसके बारे में मालूमात लेने की कोशिश की, मगर मुझे तो कुछ सुराग नहीं मिला। मगर अगले ही दिन डैडी को मालूम पड़ गया कि मैं मनमयत कौर को तलाश करने चंडीगढ़ गया था। डैडी ने मुझे आखिरी वार्निंग देकर छोड़ दिया कि आइंदा अगर तुमने इस लड़की के बारे में सोचा भी तो इससे पहले तुम्हें गोली मारूंगा। अब मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचा था कि तन्हाई में बैठकर अपनी लाडली बहन को याद करके आंसू बहा लेता हूं। जब याद हद से बढ़ जाती है तो फिर इसमें धत होकर बेहोशी की हालत में चला जाता हूं। धर्मयत सिंह की बातें सुनकर मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा, हौसला करो यार, अगर तुम मनमयत कौर से इतनी मोहब्बत करते हो तो ऊपर वाला एक दिन इसे तुमसे जरूर मिलवाएगा। ये कहकर मैं चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, धर्मयत सिंह, फर्ज करो मनमयत कौर तुम्हें मिल भी जाती है और वो खुद को बेकसूर भी साबित कर देती है, जैसे तुम कह रहे हो कि किसी ने इसे अगवा किया है, या ये भी हो सकता है कि वो किसी के बहकावे में आ गई हो, तो तुम इससे मिलने के बाद क्या सलूक करोगे? मेरा मतलब इसे घर लाने की कोशिश करोगे या फिर इससे लाताल्लुकी का इजहार करते हुए इसे इसके हाल पर छोड़ दोगे? धर्मयत सिंह बोला, यासिर वीरे, मैं कैसे इससे लाताल्लुकी का इजहार कर सकता हूं? उन हाथों में वो खेली है, मेरी उंगली पकड़कर इसने चलना सीखा है। इसको देख देख कर मैं खुश होता रहता था। मेरे लिए वो मेरी नन्ही परी की परी रहेगी। बस एक दफा वो मुझे मिल जाए, इसके बाद चाहे मुझे घर से बेदखल कर दें, मुझे मार दें, चाहे जो भी मेरे साथ सलूक करें, मगर मैं इसे घर वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मैंने कहा, यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारे बाकी भाई या तुम्हारे डैडी इसे देखते ही मार दें और वो बेचारी बेमौत मारी जाए। धर्मयत सिंह एकदम चौंकते हुए बोला, यासिर यार, क्या तुम मनमयत कौर को जानते हो या तुमने इसे कहीं देखा है?